previous video we have discussed about the important topic, and that topic was the structure. So in the previous video we have also discussed about how the structure is different from the array. Then we have discussed about the declaration of the structure, that means how we can define the structure with the help of a struct keyword. Then we have also discussed about how we can declare the structure variables. After discussing about this topic, that means how we can declare the structure variables, we have the two ways by which we can declare. Either within the structure itself we can declare the variables, or outside the structure we can also define the structure variables. Now come to our new topic, and we have also discussed about the accessing structure elements. So in the previous video we have discussed all these topics related to the structures. Now we are coming to the next topic of the structure, and that topic is storing and how we can store actually the structure elements, how much memory space it will take. So let us we move to this topic, and this is the storing and how structure elements are stored into the memory. तो हमने पहले भी बताया था कि एरे क्या करता है. एरे का अगर हम बात करें कि एरे कैसे एलिमेंट्स को स्टोर करता है, एरे भी एलिमेंट्स को एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे ही स्टोर करता है. क्यों करता है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स. वंस यू हैव डिक्लेयर द एरे, सो जितने भी आपने एरे एक बार डिक्लेयर कर दिया, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी सबकी डेटा टाइप क्या रहेगी? सेम रहेगी. लाइक आई एम गोइंग टू डिक्लेयर इंट A10. तो यहाँ पे जो A10 है, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं A0 से लेके A9 तक, सबकी टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है. और ये जो स्टोर होता है, एरे जो स्टोर होता है, वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में होता है. वो कैसे स्टोर होता है कि मान लो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो स्टोर है आपका 2000 पे, यानी कि 2000 मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है. जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? दैट विल स्टोर एट 20002, and next element will be stored at 20004, then 20006 and up to so on. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर एलिमेंट जो है उसकी टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है. तो एक इंटीजर टाइप अगर हम सी लैंग्वेज के अंदर बात करें तो वो 2 बाइट्स का मेमोरी स्पेस लेता है. दैट मीन्स एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 2 लोकेशंस आर रिक्वायर्ड, 2000 से लेके 2002 तक. तो नेक्स्ट एलिमेंट जो स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा? 2003 and 2004. So these 2 bytes will be taken by the one element. So that is the concept of array. Similarly, now we are talking about the structure elements. अगर हम वही structure की बात करें, क्योंकि structure है क्या? Collection of dissimilar data type elements. तो जब हम यहाँ पे structure की बात करते हैं तो वो कैसे मेमोरी में स्टोर करता है एलिमेंट्स को और कितना स्पेस लेता है? क्या वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है या रेंडमली स्पेस में करता है? नहीं. जनरली जो जितने भी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन द कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन. हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे ही स्टोर होते हैं वो. सो दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड दैट array elements are always stored in the continuous memory location. Similarly, structure elements are always stored in the continuous memory allocation. Now how we can check that? We can also check with the help of program. Now we are going to make a program. So this is void main function हमने लिया यहाँ पे. struct book बनाया और हमने यहाँ पे 3 elements लिए. This is your first element, element 1, and then we have the float price, that is your second element, element 1, element 2, element 3 of type integer. Now how we can create the variable create करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप. तो डेटा टाइप क्या है हमारे पास यहाँ पे? struct book. देन हमने क्या वेरिएबल का नाम ले लिया b1 इक्वल टू, देन वी आर गोइंग टू असाइन द वैल्यू. यहाँ पे हमने सिंगल कोट में एक सिंगल करेक्टर दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे एरे ऑफ करेक्टर नहीं बनाया. वी हैव टेकन हेयर द नेम विच इज ऑफ टाइप सिंगल करेक्टर. तो यहाँ पे क्या लिया? एक सिंगल कोट में एक सिंगल करेक्टर ले लिया b, और प्राइस क्या लिया हमने? डेसिमल वैल्यूज में, और पेजेस किस में? हमारे इंटीजर वैल्यू में. तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को कांस्टेंट बनाया, उसकी वैल्यूज को हमने असाइन किया. मान लो हम इसके एड्रेस को शो करना चाहते हैं तो हम कैसे शो कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ स्टेटमेंट. सो दिस इज प्रिंटफ एड्रेस ऑफ नेम इक्वल टू %u, दैट इज योर
एक स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं अनसाइंड इंटीजर। सो दिस इज परसेंटेज यू, देन m%b1.name। यहाँ पे m% का काम क्या है, एड्रेस ऑफ। अब हम एक्सेस कैसे करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नेम डॉट नेम। तो यहाँ पे जो हमने वेरिएबल b1 बनाया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही b1 डॉट प्राइस, तो उसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। b1 डॉट पेजेस, तो ऐसे क्या होगा, वो भी स्टोर हो जाएगा। तो जनरली अब जब ये प्रिंट करेगा तो आउटपुट कुछ इस टाइप से आएगा, एड्रेस ऑफ द नेम इज स्टोर एट 65518। अब नेम जो था वन वन करेक्टर जो है, करेक्टर टाइप का है, तो कितना बाइट स्पेस मेमोरी लेता है, इट टेक 1 बाइट मेमोरी स्पेस। तो ये कितना लेगा, 65518 से शुरू हुआ, तो कहाँ पे जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो कहाँ तक शुरू होगा, एड्रेस ऑफ प्राइस 1 बाइट के बाद। तो 1 बाइट के बाद क्या है, 65519। और उसके बाद फ्लोट जो है, फ्लोट किस टाइप का है, प्राइस जो है फ्लोट टाइप का है, 4 बाइट स्पेस लेगा। तो 4 बाइट मीन्स 65519 से शुरू होकर 65522 तक। तो कितना हो गया, दैट इज योर 4 बाइट। तो नेक्स्ट जो पेजेस के लिए जो मेमोरी लोकेशन स्टार्ट होगी कहाँ से होगी, 65523 से शुरू होगी। अब हम ये जो डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि कैसे स्टोर कर रहा है। तो यू कैन सी दैट इन दिस डायग्राम, so below diagram is showing that how the structure elements are stored. So you can see that this is first element b जो था वो स्टोर हो रहा है 65518 से। देन हमारे पास प्राइस आ गया जो फ्लोटिंग प्राइस है 65519। देन हमारे पास क्या आ गया, पेजेस, जो कि हमारे पास इंटीजर टाइप का है 65523। तो करेक्टर जो है, जो नेम है हमने करेक्टर टाइप का लिया था, तो इट विल टेक 1 बाइट मेमोरी स्पेस। देन प्राइस, प्राइस किस टाइप का था, फ्लोट टाइप का था, तो इट विल टेक 4 बाइट मेमोरी स्पेस। देन b1 डॉट पेजेस, पेजेस जो एलिमेंट था वो किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का, सो इट विल टेक 2 बाइट मेमोरी स्पेस। सो टोटल इट विल टेक 4 + 2 + 1, दैट मीन्स द वेरिएबल b1 विल टेक total of 7 bytes of memory space, but in the continuous memory allocation. नाउ लेट अस वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। अगर हम एक इस प्रोग्राम को अपने VS कोड में एग्जीक्यूट कर लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि हम कैसे हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। तो लेट अस कम बैक टू आवर VS कोड, देन जस्ट क्लिक ऑन द फाइल, देन क्लिक ऑन द न्यू फाइल। वी आर गोइंग टू मेक द स्ट्रक्चर, सो आई एम गिविंग नेम हेयर द स्ट्रक्चर डॉट सी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। देन एंटर। देन हम अपना लोकेशन दे देते हैं जहाँ पे हम प्रोग्राम्स को सेव कर रहे हैं, सी प्रोग्राम्स को, दैट इज योर सी प्रोग्रामिंग। देन स्ट्रक्चर डॉट सी, देन क्रिएट फाइल। अब नई न्यू फाइल हैव बीन क्रिएटेड ऑफ टाइप डॉट सी लैंग्वेज। देन वी आर जस्ट गोइंग टू टेक हेयर द हेडर फाइल हैश include stdio.h. then we need to take the main function, so I'm going to take here the integer main. In this main function what I need to do, we just need to declare here the structure. How we can declare, struct then book। यहाँ पे struct क्या है, कीवर्ड है, book क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर का नेम। जो बुक जो है ये ऑप्शनल पार्ट है, दिस इज द ऑप्शनल पार्ट। अगर आप नहीं भी देंगे तो भी एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा। देन ब्रेसेस विल बी ओपन, देन वी नीड टू स्पेसिफाई द एलिमेंट। सो फर्स्ट एलिमेंट आई एम टेकिंग हेयर द करेक्टर नेम। दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं फ्लोट प्राइस ऑफ द बुक, देन इंटीजर पेजेस। तो हमने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर एलिमेंट्स दिए। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को क्लोज कर रहे हैं। नाउ वी नीड टू क्रिएट द वेरिएबल हेयर, स्ट्रक्चर वेरिएबल। या तो हम इस टर्मिनेटर से पहले हम क्रिएट कर देते हैं b1, b2, b3, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट हो जाए। दूसरा वे क्या है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेटा टाइप। अब हमने ये यूजर डिफाइन है, स्ट्रक्ट बुक क्या है, एक आपकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिफाइन इट। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप आती है स्ट्रक्ट, देन बुक, then space, then variable name. So I am taking here the variable name b1. अगर आप इसको constant बनाना चाहते हैं, you can assign the value here. The first of all we are going to assign b, then comma, then we need to give the price of the book. So this is the price of the book.
then the number of pages, so this is the number of pages I have given here. Now we need to print the address. हमें देखना है कि क्या कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर रहा है नहीं कर रहा. तो अब हमने क्या किया, /n और वी नीड टू राइट हेयर द एड्रेस ऑफ नेम. अब हमें नेम, अब यहाँ पे जो b1 वेरिएबल है इसके करस्पॉन्डिंग हमें नेम को एक्सेस करना है. तो हम क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. और वो कैसे करते हैं अभी देख लेते हैं. %u देन कॉमा, इफ़ यू नीड टू प्रिंट बुक b1 का अपने नाम प्रिंट करना है, यानी कि b प्रिंट करे, बुक का नाम क्या है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पे %c, क्योंकि करेक्टर टाइप लेना पड़ेगा. हम ये भी कर लेते हैं %c एंड यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ नेम की जगह हम बुक नेम कर देते हैं. सो दिस इज योर बुक नेम इक्वल टू %c एंड देन हमने एक्सेस करना है, तो b1 डॉट नेम. b1 क्या है, एक बुक है, एक वेरिएबल है. वो क्या कर रहा है, 3 एलिमेंट्स का डेटा को स्टोर कर रहा है. सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रिंट. अब हम यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करा लेते हैं. सो दिस इज योर बुक नेम एड्रेस, दिस इज योर %u कॉमा. एड्रेस प्रिंट कराना तो क्या यूज़ करेंगे हम, ऑपरेटर एड्रेस ऑफ देन b1 डॉट नेम. Now we need to print here the price of the book. So we are going to use /n book price is equal to %. अब ये किस टाइप का, फ्लोट टाइप का, तो we need to take %f कॉमा b1 डॉट प्राइस. सिमिलरली अगर हम इसका एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट f /n book price address is %u comma ampersand b1 dot price. Similarly we can also print the pages. So this is your /n, this is book pages, number of book pages, number of pages in book is equal to, अभी इंटीजर टाइप का है तो वी नीड टू टेक द फॉर्मेट स्पेसिफाई %d कॉमा b1 डॉट पेजेस. अगर हम इसका एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं तो printf /n एड्रेस ऑफ pages in book is equal to % of u, because we are going to print the address, so ampersand b1 dot pages. प्रोग्राम को सेव करना है एंड देन वी नीड टू यूज़ हेयर रिटर्न 0, बिकॉज हमने मेन को हमने इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप लिया, सो रिटर्न 0. देन वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. Yes, the program has been executed and you can see the output here. So it is displaying book name. So book name हमने क्या लिया था, B. यहाँ पे हमारे पास book name क्या है, B है. Book name address is, so it is printing an address 2034235044. So ये करेक्टर टाइप का था, तो इसने क्या लिया, 1 बाइट का मेमोरी स्पेस लिया और इसने क्या किया, उसका एड्रेस को स्टोर कर दिया. Let us come back to our output. So this is just a second, compiled successfully. Just a second. Actually I have clicked here the 2 times, so that's why it has compiled it 2 times. So now the output will be shown onto your screen. Yes, so you can see that this book name is B, book name address is 639630404. Then book price is 234.66 998, and the book price address is 69360 and 404 की जगह 408. तो फर्स्ट नेम जो बुक नेम है 1 बाइट का करेक्टर लेता है, बट यहाँ पे क्या है कि जो कंपाइलर जो हम ले रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड, सो इट इज़ टेकिंग द 4 बाइट. तो ये डिपेंड करता है कंपाइलर आपका कौन सा है. अगर आपका
4 बिट है, 8 बिट है, 16 बिट कंपाइलर है जो यूज़ करता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो आपकी डेटा टाइप है उसके लिए डेटा जो स्टोरेज स्पेस है वो साइज़ इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम बात करें अगर टर्बो सी के अंदर सी जो होता है it takes 2 byte memory space, but in case of a java it will take 4 byte space। और c अगर हम मान लो हम किसी 64 बिट पे चलाते हैं या फिर हम कोई दूसरे हम कंपाइलर को यूज़ करते हैं जैसे कोड ब्लॉक्स, वो 4 बाइट का मेमोरी स्पेस लेता है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर टू कंपाइलर, बट यू कैन सी दैट दीज आर प्रिंटिंग इन द कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। तो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन क्या है कि यहाँ पे एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है, एड्रेस जो है कंटिन्यूस ही है। तो यहाँ पे you can see that this is the first is storing at the 404, then it is storing at the 408, then it is storing at the 412। So this is the way by which we can print the address of the structure element, how the structure element are storing here। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो इंटीजर टाइप है वो 4 बाइट स्पेस ले रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे फ्लोट इट इज टेकिंग द 4 बाइट स्पेस। नाउ कम बैक टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज array and structure। This is also the important concept। Now we have already discussed about the arrays। array हमने already discuss कर लिया, how array कैसे different text structure से वो हमने कर लिया। Can we combine both these topic into one topic? Yes, we can combine। That means we can also use the array in the structure also। Generally suppose if you want to store the information of the 100 books, मान लो आपके पास, अभी हम बात कर रहे बुक्स की, जहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था B1। सो दिस वाज योर B1 बुक। ऐसी मान लो हमारे पास दूसरी बुक होती तो हम क्या करते, स्टक बुक B2, या फिर हम क्या करते स्टक बुक B1, B2, B3, B4। ऐसे हम नंबर ऑफ बुक्स को क्या करा सकते हैं, हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन मान लो आपको 100 बुक्स का डिटेल को एंटर करवाना है, या 100 बुक की डिटेल्स को आप चाहते हो कि डिस्प्ले कराना चाहते हो उनकी डिटेल्स को, तो तब उस केस में क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट स्टार्ट विद स्ट्रक्ट बुक, देन B1, B2, B3, अप टू B99। सो इट वुड बी कन्वीनियंट टू यूज दिस वन लाइक, और आइदर वी कैन क्रिएट एन एरे। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा बेटर है? द बेटर ऑप्शन इज वी क्रिएट द एरे, क्योंकि अगर हम लिखने लगेंगे, वेरिएबल को क्रिएट करने लगेंगे, तो B1, B2, B3, B4, B5, ये एक इनकन्वीनियंट वे होगा जहाँ पे हमें 99 वेरिएबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम 99 वेरिएबल्स ना क्रिएट करके भी अगर हम एरे क्रिएट कर लें, किसका, एरे ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स का, तो दैट वुड बी मोस्ट कन्वीनियंट वे टू डिफाइन द 100 बुक्स डेटा। तो हम 100 बुक्स का डेटा को कन्वीनियंट वे में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एरे का कॉन्सेप्ट आता है। तो एरे का कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, लेट अस बी सी विद एन एग्जांपल। सो सपोज we are going to make a program in C to store the information like name, roll number, branch, department and marks of the 10 students using structures। अगर हम मान लो 10 स्टूडेंट्स का डेटा को स्टोर कराना चाहते हैं, 10 स्टूडेंट्स के डेटा का, जिसमें उसमें क्या है, डेटा में नेम है, उसका रोल नंबर है, ब्रांच है, डिपार्टमेंट और मार्क्स है, और साथ में हम ये भी फाइंड आउट करना चाहते हैं हु हैज टॉप्ड इन द क्लास, किसने टॉप किया उस क्लास के अंदर। तो हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द बोथ द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे एंड स्ट्रक्चर हियर। सो लेट अस बी सी द प्रोग्राम हियर फर्स्टली, देन वी विल execute this program onto your Visual Studio Code। So this is the header file we have declared, stdio.h, then conio.h, then we have taken the main function। In this main function we are going to declare some variable like I maximum equal to 0, then we have taken the index maximum we have taken so that we can compare the top, that means one by one student data we can compare, the marks of the student will be compared with the, firstly we will compare with the max, if it is greater than this one then we will replace the max to the first student, then second, then third, then so on। So let us be see with the programming here। So first of all we need to create here the structure। यहाँ पे हमने क्या किया, एक structure create किया, we have taken the keyword struct, then the structure name student, then we are going to declare here the structure elements। हमें कौन कौन से elements लेने थे, सबसे पहले हमने name ले लें। So this is we have taken the name, then roll number। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, we are also using here the array। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, character array को यूज़ कर रहे हैं। We are going to use the character array here।
Similarly, we have taken here the character array. Now we need to take the roll number here. So हमने यहाँ पे एक roll number लिया है. This is your roll number and it is of integer type. ये integer type का है. Then we are going to take the branch. This is the class branch. So यहाँ पे branch जो है again एक हमने character array लिया है, क्योंकि branch क्या हो सकती है, जैसे CSC हो गया या आपका एक नॉट ए सिंगल करेक्टर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया या कुछ और हो गया. तो यहाँ पे क्या है कि आप नंबर ऑफ करेक्टर्स यू नीड टू एंटर. सो वी आर गोइंग टू टेक हेयर द करेक्टर एरे. तो हमने यहाँ पे करेक्टर एरे लिया. देन डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंट भी एक करेक्टर एरे है. देन मार्क्स, वी हैव टेकन द मार्क्स ऑन विच वी विल फाइंड आउट द टॉप. जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे वही हम क्या करेंगे, उसको हम डिक्लेयर करेंगे वो स्टूडेंट क्या है, टॉप इन द क्लास. नाउ वी कैन क्रिएट हेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स. अब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप. सो डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे हमारी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट. देन वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल S1, S2, S3, S4, S5. वी नीड टू क्रिएट हेयर 10 स्टूडेंट्स वेरिएबल. So it would be very complex to create these S1, S2. It will be inconvenient. So उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि हम क्या करें, जो वेरिएबल्स थे उनका हमने क्या बना दिया, एरे. So that is called array of structure elements. Array of structure elements. Now what will be the notation here in case of a memory, if you will see that. तो यहाँ पे अगर मैं मेमोरी की बात करूँ कॉन्सेप्ट की, तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स का एरे क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होगा दैट विल बी स्टार्ट विद द S0 से शुरू होगा. द फर्स्ट जो करेक्टर जो आपका एलिमेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट बना है S0 से शुरू होगा. देन द नेक्स्ट विल बी योर S1. देन इट विल गोज अप टू S9. तो ये कहाँ तक जाएगा, इट विल गोज अप टू S9. तो यहाँ पे हमने एक तरह से क्या किया, वी हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर एलिमेंट एरे. लेकिन जो S0 है, S0 क्या है, एक वेरिएबल है, स्ट्रक्चर वेरिएबल, जो क्या कंटेन करेगा, इट विल कंटेन ऑल दी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स वैल्यू. सो S0 के लिए क्या है, फर्स्ट स्टूडेंट हो गया, दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट, दिस इज योर सेकंड स्टूडेंट, दिस इज योर थर्ड स्टूडेंट एंड दिस इज योर 10th स्टूडेंट. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक स्टूडेंट के लिए, तो S0 के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होंगी, नेम होगा उस स्टूडेंट का, रोल नंबर होगा, ब्रांच होगा, डिपार्टमेंट होगा और मार्क्स होगा. So similarly, how we can declare and how we can put the value into these ones, S0, S1, S2. हमें क्या चाहिए, हमें इसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराना है. We need to store the value. How we can store? We need to apply the for loop. यहाँ पे हमें loop लगाना पड़ेगा if you want to enter the 10 student information. How we can enter? For I equal to 0. यहाँ पे आना चाहिए I is, अगर हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो I must be less than 9. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9. Intentionally I have written here the 3 because 10 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन एंटर करते करते टाइम लग जाता है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डिक्लेयर 3 किया है. आइदर इट शुड बी, अगर मान लो कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे 9 ही करना पड़ेगा. आई मस्ट बी लेस देन 9. 0 to 9 it becomes 10 student data. Then we need to enter data. So this is your printf, enter name of the student, then scanf %s si dot name. हमने SI क्यों लिया, क्योंकि I क्या है, स्टार्टिंग विद द स्क्रिप्ट 0, I की वैल्यू 0 से शुरू होगी, तो S0 के लिए नेम की वैल्यू लेगा. फॉर दिस वन कंपोनेंट इट विल टेक द वैल्यू. S0 के लिए क्या करेगा, नेम की वैल्यू लेगा. देन इट विल टेक SI डॉट रोल नंबर, S0 के लिए लेगा रोल नंबर की वैल्यू. फिर S0 डॉट ब्रांच, S0 के लिए लेगा ब्रांच की वैल्यू. देन इट विल टेक द डिपार्टमेंट एंड देन मार्क्स. एंड ये जो लूप चलेगा कब तक चलेगा, इट विल स्टार्ट विद 0 to 9. तो I++ होता रहेगा बार बार लूप के अंदर. फर्स्ट S0 एलिमेंट के लिए वैल्यू को एंटर करेगा, देन इट विल एंटर द वैल्यू फॉर द सेकेंड एलिमेंट, देन इज योर S1, देन S2, देन S3 एंड देन अप टू S9. इट विल टेक द वैल्यूज अप टू S9. सो वंस द वैल्यूज विल बी हैव बीन एंटर्ड, जब एक बार आपकी सारी वैल्यू एंटर हो जाएगी, हमें करना क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द टॉप. अब टॉप स्टूडेंट को फाइंड आउट करने के लिए मान लो आपके पास एक तरह से क्या बन गया, एक वेरिएबल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स का एक एरे बन गया, जहाँ पे क्या है, हर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग मार्क्स की वैल्यू है. और अगर हम यहाँ पे वैल्यू मार्क्स कंसिडर करें, सपोज आई एम कंसिडरिंग द फर्स्ट एलिमेंट वैल्यू एड्रेस इज द वैल्यू फॉर द S0 डॉट मार्क्स, S0 डॉट मार्क्स की वैल्यू है मान लो 40.
यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो गेट कर रहा है मार्क्स कितने 40. नेक्स्ट स्टूडेंट इज गेटिंग हेयर द 10 marks. Then the next student is getting 25 marks. Now so on up to S0 से शुरू होके S9 तक जाएगा और लास्ट स्टूडेंट के मार्क्स है 20. So now we need to compare the SI dot marks. That means S0 के मार्क्स को हमें कंपेयर करना है किसके मार्क्स के साथ, S1 के साथ. फिर अगर इनमें से जो भी बड़ा होगा वो मैक्सिमम क्या बन जाएगा आपका 40. देन वी नीड टू कंपेयर दिस 40 विद द अदर वन. क्या 40 25 से ग्रेटर है? यस. तो मैक्सिमम क्या रहेगा, मैक्स क्या रहेगा आपका 40 रहेगा. ऐसे हम नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे. अगर मान लो नेक्स्ट वाले का मार्क्स जो है ज़्यादा है 40 से, तो हम मैक्सिस को बना देंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स को बना देंगे. एंड सिमिलरली अप टू लास्ट एलिमेंट. तो हमें क्या करना है, हर स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग मार्क्स को चेक करना है. अगर वो मैक्स स्टार्टिंग में मैक्स से कंपेयर करेंगे, वी आर गोइंग टू कंपेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट, स्ट्रक्चर एलिमेंट मार्क्स. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है. तो वो कैसे करेंगे, तभी हमने मैक्सी वैल्यू ऊपर क्या ली थी, वी हैव टेकन द मैक्सिमम वैल्यू इज 0. वी हैव टेकन द मैक्सिमम वैल्यू इज 0. तो शुरू में हम यही कंसीडर करके चलते हैं, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो हैं क्या है, ग्रेटर हैं किससे, 0 से. तो मैक्स क्या बन जाएगा, द मैक्स विल बी 40. देन द मैक्स विल बी कंपेयर विद द 10. अब देखेंगे क्या 10 40 से बड़ा है, नहीं, तो मैक्स क्या रहेगा 40 रहेगा. फिर कंपेयर करेंगे 25 से, फिर भी 40 बड़ा रहेगा एंड सो ऑन. तो ये करेंगे कैसे, फॉर लूप लगाएंगे. फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 9. यहाँ पे हमारे पास सॉरी आई इज लेस देन इक्वल टू 9. 0 टू हमें 9 तक लेके जाना है और हमने यहाँ पे ये मिस्टेक की है. यहाँ पे 0 इज सॉरी आई इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 9. तो आई इज लेस देन इक्वल टू 9. तो 0 से लेके 9 तक हमें करना क्या है, सिर्फ हमें मार्क्स को कंपेयर करना है. तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल लेंगे कौन सा लेंगे, SI डॉट मार्क्स. इफ मैक्स इज लेस देन SI डॉट मार्क्स, तो शुरू में S0, यहाँ पे S0 डॉट मार्क्स आ गया. तो S0 डॉट मार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 40. अगर मैक्स जो है शुरू में मैक्स की वैल्यू क्या है 0 है. अगर 0 जो है लेस देन क्या है 40 है. यस 40 है ना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिस को बना देंगे, मैक्स इक्वल टू जो ये वाला था, यानी कि SI डॉट मार्क्स क्या बन जाएगा, मैक्स बन जाएगा. और इंडेक्सिंग की वैल्यू क्या कर देंगे, दैट विल बी असाइन टू द की. एंड सिमिलरली द लूप विल बी गोस. और जब तक ये मैक्सिमम फाइंड आउट नहीं कर लेता तब तक लूप चलता रहेगा 0 से लेके 9 तक. और लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के मार्क्स को भी प्रिंट कर देंगे और स्टूडेंट के नेम को भी हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे. तो लेट अस कम बैक टू आवर विजुअल स्टूडियो कोड and try to run this program. So just go to the new file and I'm giving here the struct underscore array dot c. So this is structure array, create file. Now we are going to make this program. So first of all जल्दी जल्दी से प्रोग्राम को बना लेते हैं. hash include stdio dot h. Then we need to take the main function. This is main function. In this main function we need to declare some variable. एक loop चलाने के लिए वेरिएबल i लिया है, एक हमने max लिया है, max की वैल्यू हमने असाइन की है 0 से, और एक हमने ले लिया है इंडेक्स. Now we need to create the structure here. और स्ट्रक्चर का नाम क्या लेना है हमने, स्टूडेंट. This is struct student. स्ट्रक्चर के अंदर हमने स्टूडेंट का नेम लेना है. सो दिस इज योर नेम 10. दिस मे बी अप टू 10 कैरेक्टर लॉन्ग. इंटीजर रोल नंबर, दिस इज रोल अंडरस्कोर नंबर. देन वी नीड टू टेक केयर द ब्रांच कैरेक्टर स्टूडेंट ब्रांच. देन कैरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट. Then we are going to float taking the marks here. So this is the marks. Now हमने स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं. तो we are just going to close this structure here. अब हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, नेम, रोल नंबर, ब्रांच, डिपार्टमेंट एंड मार्क्स. नाउ हमें करना क्या है, 10 स्टूडेंट्स के लिए हमने करना है. तो मैं 10 स्टूडेंट्स के लिए इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि
we need to be enter 10 student data. It would be very longer for me to enter all these data, student 1, student 2, student 3, student 4. बट अगर हम 3 स्टूडेंट्स का भी कर लेते हैं तो भी वो सेम ही रहेगा 10 स्टूडेंट्स के लिए. जहाँ पे आप 3 लिखेंगे वहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. तो आई एम गोइंग टू टेक केयर द स्टक स्टूडेंट. हमने क्या किया यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, S1 S2 S3 वेरिएबल्स ना क्रिएट करके आप एक एरे ऑफ द स्ट्रक्चर बना रहे हो, एरे ऑफ द स्ट्रक्चर एलिमेंट. सो यहाँ पे क्या है, एरे ऑफ द स्ट्रक्चर एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम S0 टू S9. बट इन माई केस आई एम जस्ट गोइंग टू टेक हेयर S3. तो ये कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3. तो टोटल कितने हो गए, सॉरी 0 1 2, तो कितने हो गए, 3 स्ट्रक्चर variables. Now we need to take here some messages here. So printf /n enter 3 students information. देखिए मैसेज हम दे रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे. देन हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें हर स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए S0 के लिए वैल्यूज़ को, इंफॉर्मेशन को पुट करना है, S1 के लिए और S2 के लिए. तो फॉर लूप लगेगा. फॉर लूप विल बी स्टार्टेड विद i इक्वल टू 0, i इज लेस देन, अगर हम यहाँ पे 0 1 2 तो यहाँ पे लेस देन 3 कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 2. तो कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2, और आइदर यू कैन टेक लेस देन 3. तो लूप कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेके लेस देन 3 तक, दैट मीन्स 2 तक. देन i प्लस प्लस. इस फॉर लूप के अंदर हमें इंफॉर्मेशन को गेट करना है यूजर से. तो वी विल टेक हियर द printf, देन /n एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, देन scanf परसेंटेज. हमें नेम चाहिए तो वी मस्ट टेक हैव टू बी हेयर परसेंटेज s. दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर बाय विच वी कैन टेक द string values. So this is si dot name. अब यहाँ पे देखो, जब भी हम परसेंटेज C लेते हैं, परसेंटेज D फॉर्मेट स्पेसिफाई लेते हैं, परसेंटेज F लेते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ M%. तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, M%. बट यहाँ पे जब भी हम एक स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज S ले रहे हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, तो वी नो नीड टू टेक केयर द M% हेयर. तो यहाँ पे M% लेने की जरूरत नहीं होती. किस केस में, व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द input in the form of string values, then and we have using the format specifier percentage s. अब हमें रोल नंबर लेना है. so this will be a /n enter roll number of student, scanf, this will be a scanf. Then we need to take here the percentage d, then comma. Now we need to take the M% here. So M% of S of I किस लिए लिया है, क्योंकि हमारा लूप शुरू होगा 0 से. पहले I की वैल्यू S0 से शुरू होगी, देन 1 2 तक जाएगी. si dot roll underscore number. Similarly we need to take here the branch. So this is printf /n enter branch of student, then scanf, this will be your percentage d, comma M% s of I dot branch. अब देखा जाए तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है. ब्रांच जो है वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है. तो यहाँ पे हम परसेंटेज डी नहीं लेंगे, वी विल टेक हेयर द परसेंटेज एस. अगर हमने उसको ऊपर अगर करेक्टर एरे लिया है तो यहाँ पे हमने यस ब्रांच को लिया है करेक्टर एरे, तो एक स्ट्रिंग टाइप का लेना है तो परसेंटेज एस होगा. जब भी परसेंटेज एस यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे M% यूज़ नहीं करेंगे. देन printf, then we will write here enter department of student, एक मैसेज दिया परसेंटेज डी, देन scanf अगेन परसेंटेज एस, देन कॉमा si dot
DEPT, department we have taken, then terminator. The last we have taken here the percentage marks. So we need to take here the marks of the student. So marks, enter marks of student, then scanf. अब इंटीजर टाइप का है तो परसेंटेज डी आएगा, एंड दिस विल बी m% ऑफ SI डॉट मार्क्स. तो बाय दिस वे वी आर गेटिंग हेयर द वैल्यू. बट मुझे लगता है कि हमने मार्क्स जो लिए हैं फ्लोट टाइप का लिया हुआ है, तो वी नीड टू टेक हेयर द परसेंटेज एफ हेयर. सो नोट द परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ. Save this program. Now we have declared here the structure, and we have also taken the information of the three students one by one. Now we need to compare the marks. तो कैसे करेंगे? for loop लगाएंगे. I equal to 0. हमें 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करना है. सो इट मस्ट बी I less than 3, then I plus plus, then we need to compare. So we are taking here the if max is less than S of I dot marks. अगर उससे है मार्क्स, यानी कि जो मैक्स था पहले हमारी इनिशियलाइज क्या थी 0, तो 0 इज लेस देन, अगर हमने फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स कुछ डाले, चाहे आइदर इट इज़ 10, 20, 30, तो वो मैक्स क्या हो जाएगा? मैक्स किसको असाइन हो जाएगा? जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स असाइन हो जाएंगे. तो मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट विल बी SI डॉट मार्क्स. एंड देन अगर हम उसके इंडेक्सिंग भी चेक करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कौन से स्टूडेंट का, तो यहाँ पे हमने I की वैल्यू किसको असाइन कर दी? K को. अब K क्यों असाइन किए हैं हमने वैल्यू? वाई वी हैव असाइन द वैल्यू टू द K? क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर K की हेल्प से हम उसका नाम भी फाइंड आउट करना चाहते हैं. जो I क्या है? एक इंडेक्सिंग बता रहा है कौन से नंबर का स्टूडेंट है जो मैक्सिमम मार्क्स लेके आया. तो वी नीड टू डिक्लेयर हेयर द वेरिएबल K. देन I की वैल्यू हमने किस में असाइन कर दी? K में. Then after this for loop we need to print here. So this is your printf. Then we need to find out the topper of the student, topper student marks. So this is topper students marks is percentage f and then comma maximum. क्योंकि लास्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी that will contain the maximum value. So this will be maximum. और हमें अगर मान लो स्टूडेंट का नेम भी फाइंड आउट करना है कि कौन सा नेम का स्टूडेंट जो है जिसने टॉप किया है, तो टॉपर स्टूडेंट्स नेम इज परसेंटेज S. तो हमें क्या करना है यहाँ पे? S ऑफ K. अब K क्या था? उस इंडेक्स पे जहाँ पे उसके मैक्सिमम वैल्यू थी. तो यहाँ पे लास्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो I में जाएगी. I के कॉरस्पॉन्डिंग किस में जाएगी? K में जाएगी. K के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं? उसके नेम को हम प्रिंट करा रहे हैं. So this is our program. Now main function is returning something. So we are going to take here the return 0, then compile, save, and then execute this program. So you can see that our program has been compiled successfully. Now we can see the output screen. So it is asking for enter 3 student information. Enter name of the student. So first of all, I'm just going to write my name Ajay. Then it is asking the roll number 7. Then the branch I'm writing CSC. Then department name it is asking, that is your again the CSC. Then marks of the student I am entering here the marks 45. The name of the student I am writing Aman. Then roll number I am writing 8. Then the branch is CSC. Department in CSC and marks I am entering 67. Enter name of the student I am writing Vidhanshi. Then roll number I am writing 4. The branch is same CSC. Department is same, and the marks I am entering 89. So again it is going to be asking for the information. I don't know why. And this is CSC. This is CSC. Enter 3 students information. I'm writing Ajay, then roll number 7, then branch CSC, then department CSC, marks 34, name of the student Aman, then roll number 08, then CSC, then CSC, marks 34, enter name of the student Vidhanshi,
then roll number 89, then the branch is CSC, then CSC. So you can see that the topper student marks is 87, and among these three students, you can see that the first student name was Ajay, and his roll number was 07. I'm just going to enlarge the screen. Yes, now you can easily see the output. So this was the first student information, Ajay. The roll number was 07, branch was CSC, student department was CSC, then marks I have entered 34. For the second student, I have entered the name, that is Aman. Then the roll number was 08, the branch is CSC, department is same CSC, the marks I have entered is 34. And the name of the student, the last student I have entered the name of a girl, that is Vidhanshi, and her roll number is 89, and the branch is same, CSC and department is same, and I have entered the marks 87. So you can see that after compiling and running this program, you can find out the topper student. Our question was to find out the topper student, and the topper student will be those who will secure the highest marks among these three students. So the topper student marks is 87, and the topper student name is Vidhanshi. So that was our program related to our structure and array. So now come back to our this program again, and we can just go through it again fastly. So this is your header files, then main function, then we have declared here the structure with the 5 elements, structure elements, that is your name, roll number, branch, department, and marks. Then we have created the array, that is called structure array, or you can call it the elements, structure elements array. So we have created the array of the 3 size, that means the number of students information we can get of 3 students. So this is, we are applying for loop for I equal to 0, I less than 3, I plus plus. Then we are getting the information, name of the student, roll number of the student, branch of the student, then department, and finally we are going to compare the marks of the students one by one. So this is the marks I am getting, and we are putting it into the maximum, and with the help of this maximum we are printing it on the screen. Topper student marks is this one, and the topper student name is sk.name. So k is the index. We have assigned the I value to the index k. So this k is I am using for getting the name of the student, topper student name. So this was all about the program, and I think it's enough for today in this video. And in the next video we will discuss further about the structures, because the structure is the most important concept. And in the next video we will also discuss about some important concept related to structure, like how we can pass the structure to a function. Then we will discuss about, in the next video, that we will discuss about self-referential structure. What are the self-referential structure? Actually, the self-referential structure are those structures that have some one or more pointer which point to the same type of structure. So we will also discuss about the pointer concept in case of a structure. Then we will also discuss about the self-referential structure with the multiple links. Then we will move on to the most important topic, that is your union, then enumeration, then finally we will use the type define, and another most important, that is your bit fields. So I think it's enough for today, and thank you for watching my videos. If you really like my videos, please subscribe to my channel and share it to the others. Thank you.